Hello students, welcome to Physics Bouquet. We have already discussed Lamar's theorem, Lamar's precession, space quantization. ये वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो पहला हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसको डिस्कशन करने के लिए लेट अस imagine an electron is revolving in an elliptical orbit. It is revolving in an elliptical orbit. Electron with a time period t. This is time period. So electron is revolving with a time period capital T. Then what will be our electric current? Charge by time. So electric current. Then according to our Ampere's circuital law, by Ampere's circuital law, we have magnetic moment is equal to I into A. So this is equal to E A by T, and this is orbital magnetic moment. So orbital magnetic moment is equal to E A by T. Suppose at a particular time the electron is here and it sweeps out an area and comes here. This angle is phi and this small angle is d phi. This d phi angle is made in a time dt, and this distance is r. Then its area is suppose dA. Small area swept out by the electron, revolving electron, will be how much? Half into r d phi. ये जो आर्क होगा इसका वैल्यू कितना होगा? r into d phi. तो imagine it to be a triangle. Since this is a small displacement, we can consider it to be a triangle. So it is like this: half base into height, half, this is base and this is height. Since it is very close to this, we can consider it to be equal to this. So half r into r d phi. So half r square d phi. Then what will be dA by dt? This is called aerial velocity. Aerial velocity. That means area swept out per unit time. It will be half r square d phi by dt. Then this implies dA is equal to half r square d phi by dt into dt. Now integrate both sides. Integration of dA is equal to half r square
d phi by dt dt. This variation of time will be from 0 to capital T in one time period. इन वन टाइम पीरियड कितना एरिया स्वेप्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू हमारा 0 टू कैपिटल टी, हाफ को बाहर ले आते हैं, आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी डी टी. सपोज ये इक्वेशन 1 है. तो अभी क्या करते हैं, हमको जो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा. ये कांस्टेंट है from the principle of conservation of angular momentum. L is equal to m r square omega, or we can write it to be m r square d phi by dt. This is equal to constant. और मैं लिख सकता हूं L by 2m is equal to half r square डी फाइव बाई डी टी. तो L कंस्टेंट है, मास भी कंस्टेंट है, 2 भी कंस्टेंट है, तो ये टोटल L बाई 2m कंस्टेंट है. तो कंस्टेंट होगा तो ये भी कंस्टेंट होगा, दैट मीन्स इट इज ए कंस्टेंट. मतलब हाफ आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी इज ए कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू L बाई 2m. तो हमारा ये जो हाफ आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी है उसके जगह हम L बाई 2m लिख सकते हैं. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स E इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी के जगह L बाई 2m 0 टू t dt. ये L बाई 2m कंस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले गए हम, तो ये हो गया LT बाई 2m. ये जो A का वैल्यू निकला इसको हम ये एक्सप्रेशन में डाल दें, तो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, E L T बाय 2mt. टी कैंसिल हो गया और म्यू एल इज इक्वल टू E बाय 2m इंटू L. So this is the expression for orbital magnetic moment. ये E by 2m इंटू L है. तो हमारा L इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू एच क्रस. ये हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो क्या लिखेंगे, तो हम म्यू एल को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो म्यू एल इज इक्वल टू ई एच क्रस बाय 2m इंटू एल. ये स्मॉल एल है, ओ कैपिटल एल, ओ एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है. ये जो ई एच क्रस बाय 2m आया इसको बोलते हैं हम बोर मैग्नेटल. This is the smallest unit of magnetic dipole moment. Smallest unit of magnetic orbital magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी में भी इतना आएगा. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका वैल्यू है, हम
ई के जगह 1.6 इंटू 10⁻19 यूज करेंगे, एच के जगह 6.6 इंटू 10⁻34, मास की जगह 9.1 इंटू 10⁻31, ये सब यूज करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻24। ये है बोर मैग्नेटन का वैल्यू। इसको म्यू बी सिंबल देते हैं। सो ये हुआ हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलरली वी हैव स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है कोई एक्सिस के चारों तरफ, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है, उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। बट वो जो मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमिन करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। चार्ज कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बॉडी में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और वो बॉडी का शेप कैसा है, ये दोनों चीज़ हमको जानना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करने जानने के लिए, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जानने के लिए। मगर हमको इलेक्ट्रॉन का शेप के बारे में मालूम नहीं है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी हमको मालूम नहीं है। तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करना मुश्किल है। बट टू bring a consonance with experimental result, ये इसका एक्सप्रेशन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लिखते हैं। इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिखते हैं, यहाँ क्या लिखें, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ ऐसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको लिखते हैं म्यू एस, एस फॉर स्पिन, इज इक्वल टू E/m इंटू एस। यहाँ देखो 2m है, यहाँ सिंपली m है। और स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या होगा, EH⁻m इंटू स्मॉल एस। यहाँ कैपिटल L लिख रहे हैं तो ये हो रहा है, स्मॉल l लिखेंगे तो क्या होगा, EH⁻2m इंटू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सिमिलरली ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है। यहाँ EH⁻m, यहाँ EH⁻2। मगर ये s का वैल्यू हाफ होता है तो हमारा म्यू एस क्या होगा, EH⁻2m। s का वैल्यू ऑलवेज हाफ है, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू ऑलवेज हाफ है। ये स्पेस क्वांटाइजेशन में भी हम पढ़ें, ms का वैल्यू प्लस और माइनस हाफ होता है और s होता है हाफ। तो ms का वैल्यू 2s+1, 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये 2 हो जाता है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। सो म्यू एस इज इक्वल टू EH⁻2 और म्यू एल इज इक्वल टू EH⁻2m। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक जनरलाइजेशन करने से ये क्या होता है, म्यू एल इंटू हम इसको लिखते हैं ZL EH⁻2m इंटू L, और इसको लिखते हैं म्यू एस GS EH⁻2m इंटू L इंटू S। देखो सिमिलर दिखाई दे रहा है, ये GL लिखा हुआ है, ये GS लिखा हुआ,
ई एच क्रस बाय 2m, ई एच क्रस बाय 2m, यहाँ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यहाँ स्पिन। मगर ये जो GL का वैल्यू है इसको, ये है 1 और GS का वैल्यू है 2। तो 2 लेने से 2 कैंसिल हो गया, ई एच क्रस बाय MS ये आ जाएगा, और GL का वैल्यू 1 लेने से ये आ जाएगा। ये जो G है, ये G को लैंडे G फैक्टर बोलते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सो यहाँ इसका डिस्कशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेस क्वांटाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट है, स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट, वो डिस्कशन करेंगे। बाय।